Factors influencing the recruitment process. Uh, there are external and internal factors that those can affect the overall recruitment process. The first factor is from external, and that is demand and supply of skilled labor in the market. The success rate of recruitment process depends on the demand and supply of a particular skill. For example, अपने राजस्थान में और इंडिया में we have a number of MBA colleges, management colleges. So हर साल लगभग आप मान लीजिए कि राजस्थान में एवरेज 100 MBA कॉलेजेस हैं और उनमें 30 to 60 का जो है वो इनटेक रहता है। और अगर फाइनल ईयर तक 50% बच्चे भी ऑल क्लियर पास होते हैं तो हर साल लगभग आप मान लीजिए कि 100 इंटू 30 लगभग 3-4 हज़ार बच्चे मिनिमम हर साल MBA पास होते हैं। और अगर फुल स्ट्रेंथ में 60 बच्चे अगर पास होने लग जाएं तो हर साल लगभग 5000 to 6000 MBA बच्चे पास हो जाएंगे, स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर जॉब और एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, एंड उसकी सप्लाई कितनी है। If demand is high and supply of talent is less, then extraordinary recruitment efforts are required. If demand is high and supply of that talent is low, for example, neurosurgeons or neurologist. Even in case of cardiologist also, वैसे भी इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, और फिर न्यूरोलॉजी के अंदर जो लोग MD करते हैं या DM करते हैं उनकी सप्लाई और भी कम है। सो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इफ़ यू आर वर्किंग एज HR मैनेजर फॉर हॉस्पिटल्स। एंड same thing is with programmers and the financial analyst also. But in case where supply is high and demand is low, easily recruitment हो जाएगा, आपको कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस मिल जाएगी। Secondly, unemployment rate of your country and of your area. If people are more into their own business and they are not willing to join jobs, in that case आपको जो है, और if your country is not having such kind of economic structure where too many jobs are there, if unemployment rate is high, then we can easily find out the potential candidates. But in case where people are engaged in businesses and other jobs and unemployment is low, in that case recruitment process is little bit tough and we need to look for the new sources of recruitment. अगर आपको अपने एरिया में कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमको या तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट सोर्स के लिए, या फिर कोई और हमको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा जॉब्स के लिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन लेबर मार्केट आल्सो। इफ वी आर लुकिंग फॉर lower level management employee or middle level management employee, then we can look for the local market or state level market. But if we are looking for top positions, top level executive, then we have to look for India level market as well as sometimes the world level market.
अगर आपकी कंपनी सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट और इस तरह के कुछ जॉब्स ऑफर कर रही हैं, तो आपको फिर इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे सर्च करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट, तो वो आपके स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हो जाएगा। और एंड इफ़ योर कंपनी इज लुकिंग फॉर ओनली लोअर लेवल मैनेजमेंट, तब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वैकेंसी निकाल के और उनको फुलफिल कर सकते हैं। Then we have political and social factors. But obviously countries like India, we have rules and regulations regarding reservations for minorities, ST, SC and OBCs, and for the Divyang persons also. So we need to follow all the rules and regulations that can affect our recruitment process, because आपको इन सब कैटेगरीज के लिए कुछ सीट्स रिजर्व करनी होगी for females, for Divyang persons, for ST, SC, OBC candidates, and for minorities candidates also. So you need to follow the लीगल कंसिडरेशंस आल्सो, लाइक जितने भी लॉज एचआर से रिलेटेड हैं उनको भी आपको रिक्रूटमेंट के टाइम में फॉलो करना पड़ेगा। एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट के जितने भी लेबर लॉज हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रेफरेंस टू सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ द सॉइल मीन्स जो आपके एरिया के अंदर जिनका बर्थ हुआ है या जो वहाँ के रहने वाले हैं रादर। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ महाराष्ट्र हम देखते हैं बहुत बार वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस का अपोजिशन होता है और उनकी कोशिश रहती है कि महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी है तो उसको सबसे पहले महाराष्ट्रियन से उसको फुलफिल किया जाए। सेम केस इज विथ इवन अमेरिका आल्सो। वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल ये एजेंडा रहता है कि मोस्टली जॉब मस्ट बी फुलफिल्ड विथ अमेरिकन सिटीजन्स ओनली। So this is definitely a political factor, but it is important nowadays कि आप लोकल पर्सन्स को आप जो हैं वैल्यू दें। नाउ ए डेज एवरी स्टेट इज मेकिंग सच काइंड ऑफ लॉज कि उस स्टेट में कोई वैकेंसी है तो फर्स्टली जो वहाँ के बोनोफाइड सिटीजन्स हैं या अपन जिनको बोलते हैं कि जो वहाँ के डोमिसाइल्स हैं, मूल निवासी हैं, उनको पहले जॉब ऑफर किया जाए और बाद में अगर वैकेंसी होती हैं तो आउट ऑफ स्टेट्स को भी ऑफर हो सकती हैं। And one important external factor is company's image in the mind of job seekers. Job seekers आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? Everybody would like to join Tata's because they have a very great positive ethical image in every Indian's mind कि हम उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे। बट देर आर फ्यू कंपनीज जिनके साथ में कोई स्कैम इन्वॉल्व रहा है इन द पास्ट और समहाउ उनका सैलरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहे हैं तो पीपल उनमें अप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं। सो दीज आर फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स दोज कैन अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। थैंक यू।